Hello everyone, my name is Aarti and you're watching HW News. In a major victory for the Hindu side in the Gyanvapi Mosque case, the Varanasi District and Sessions Court on Monday upheld the maintainability of its petition. The District Court dismissed Anjuman Islamia Masjid Committee's plea filed under Order 7, Rule 11 of the CPC, challenging the maintainability of the suit. 5 women had filed a petition seeking permission for daily worship of Hindu deities whose idols are claimed to be located on an outer wall of the Gyanvapi Mosque. The Anjuman Intizamiya Masjid Committee has said the Gyanvapi Mosque is a Waqf property and had questioned the maintainability of the plea. Moreover, the court has posted the matter for hearing on September 22nd and it will now hear the arguments based on merits. District Judge A.K. Vishweshwar ordered rules that the suit filed by the Hindu worshippers is not barred by the Places of Worship Act or the Waqf Act. Having heard the parties at length, District Judge A.K. Vishweshwar last month completed the hearing and reserved its order. The plaintiffs have claimed that the present mosque premises was once a Hindu temple and it was demolished by Mughal ruler Aurangzeb, and thereafter the present mosque structure was built on top of it. On the other hand, the Anjuman Masjid Committee has argued in its objection and Order 7, Rule 11 of the CPC application that the suit is specifically barred by the Places of Worship Special Provisions Act 1991. Ahead of the verdict by a court in Varanasi in the Gyanvapi Mosque Shringar Gauri case, the Lucknow police conducted a flag march in the city today. Prohibitory orders were clamped and security was tightened in Varanasi to maintain law and order ahead of the ruling. More than 250 policemen were present outside the Varanasi court complex. A bomb disposal squad patrolled the area and monitoring was also done through a dog squad. Outsiders were not allowed to stand around the court premises and quick response teams were also deployed there. Now let us also understand a little bit about the background of the case. A local court presided by Varanasi Civil Judge Senior Division Ravi Kumar Divakar had earlier appointed a survey commission to submit a report by visiting the mosque. The court had received the survey report on May 19th. However, even before the submission of the survey report, the court, on a submission made by the court-appointed advocate commissioner that it had found Shiva Linga inside the Gyanvapi Mosque premises during the survey, had ordered to seal the entire spot. Meanwhile, a petition was filed by the Masjid Committee before the Supreme Court challenging the survey order by the Varanasi court. Hearing the plea on May 17th, the Supreme Court clarified that the order passed by the Civil Judge Senior Division will not restrict the right of Muslims to access the mosque to offer namaz and to perform religious observations. Further, on May 20th, the Supreme Court transferred the suit filed by Hindu devotees in connection with the Gyanvapi Mosque Kashi Vishwanath Temple dispute to the District Court in Varanasi. Now, as I said, the Hindu side's plea has been admitted and the hearing will take place on September 22nd and the arguments on the merits will begin on September 22nd. Do let us know what you think about this in the comment box below. For more news and updates, you can log on to www.hwnews.in. विष्णु, आगे क्या होगा इस केस में? अगर देखिए आज हम जीतते हैं तो आगे आने वाले समय में कार्बन डेटिंग की मांग, जो शिवलिंग हमें मिला है, शिवलिंग के नीचे जो दीवार है उसको हटाने की मांग, ये सारी मांगे रखी। विष्णु, 1991 वर्शिप एक्ट में ये एक्ट नहीं लागू होता। आपका कहना है कि ये कवर नहीं होता, ये पूरा मुकदमा 1991 से कवर नहीं होता है और 1991 केस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में है, क्योंकि एडमिटेड फैक्ट है कि व्यास जी नवंबर 1993 तक वहाँ पूजा करते चले आते हैं। सेक्शन 4 ये कहता है मूल संरचना की बात करता है। मूल संरचना धार्मिक स्वरूप जो है 15 अगस्त 47 का मेंटेन रहेगा और उस समय इस जगह का मूल स्वरूप हिंदू मंदिर का था, जिसको कन्वर्ट करने की मस्जिद की कोशिश। विष्णु, आखिरी सवाल आपसे लूंगा, इस बात को क्लेरिफाई करिए, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि केवल एक ज्ञानवापी जो 5 वादी महिलाएं हैं श्रृंगार गौरी की, उन्होंने पूजा अर्चना मांगी है, लेकिन ये मामला उससे ज्यादा बड़ा है। उससे ज्यादा बड़ा है क्योंकि सिर्फ श्रृंगार गौरी का मसला नहीं है। उस तथाकथित मस्जिद के अंदर जो हमारे पूजा के स्थल है, वहाँ पे पूजा रेस्टोर करने की मांग है, ये मूलभूत मुद्दा है। क्या कुछ फैसला हुआ है? देखिए 26 पेज का फैसला है जो हमारे हाथ में है, ठीक है। 26 पेज का ये आदेश है, बहुत विस्तृत आदेश है, अंग्रेजी में है। इसमें ऑर्डर है द एप्लीकेशन 35C फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट नंबर 4 अंडर 7 रूल 11
CPC हेयर बाय डिसमिस। इसका मतलब हुआ कि जो डिफेंडेंट नंबर 4 ने जो ऑर्डर 7/11 की एप्लीकेशन दी थी कि ये मुकदमा चलने योग्य नहीं है, उसको अदालत ने खारिज कर दिया है। नेक्स्ट डेट 22/9/22 और फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट, मतलब कि बच्ची को उस दिन अपनी जवाबदेही, अपना जवाब जो दावे के खिलाफ जवाब है वो दाखिल करना है। एंड उस दिन ऑनरेबल कोर्ट इशू फ्रेम करेगी। इशू फ्रेम का मतलब हुआ है उस दिन वाद बिंदु, जिसको उर्दू में तंकी बोलते हैं, कि मुकदमे किन आधारों पर आगे प्रोसीड करेंगे, किन बिंदुओं पर साक्ष्य लिए जाएंगे, वो तय करेगी। तो कोर्ट उस दिन सारे विपक्षियों से कहिए कि आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करेंगे 22 तारीख को, और उस दिन ऑनरेबल कोर्ट जो है इशू फ्रेम करेगी। द एप्लीकेशन पेंडिंग अंडर ऑर्डर 110 CPC बाय डिफरेंट एप्लीकेशन शैल आल्सो बी डिस्ट्रेड। और जिन लोगों ने उन मुकदमों में पार्टी बनने की दरखास्त दी है वो भी 22 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेंगे कि वो पार्टी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। ये 5 लाइन का ऑपरेटिव पोर्शन है। उसके अलावा 26 पेज का डिटेल ऑर्डर है। हिंदू को चारवादियों के नारे लगा रहा है, खुशी का माहौल है, इसको किस तरीके से आप देखिए, निश्चित रूप से टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे ये दावा किया जा रहा था कि मुकदमा चल ही नहीं सकता, तो हम कोर्ट ने मुकदमा चलाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यदि उनकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाती तो ये मुकदमा ही खत्म हो जाता। तो इसलिए निश्चित रूप से टर्निंग पॉइंट है। कितनी बड़ी जीत हुई है आज आप लोगों की, कितनी बड़ी मानते हैं? कोर्ट के अंदर मौजूद थी, कैसा लग रहा है? आज जो है ये कहा गया कि आज तरफ से जो है ये कहा गया कि एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है, तो आप लोग को ये उम्मीद थी कि काफी संघर्ष किया, हम देख रहे हैं हाथों से आती थी यहाँ पर। क्या किस तरीके से आप लोगों में खुशी का माहौल है, कितना संघर्ष रंग लाया है? आज हमारे बाबा की, हमारे पूरे समाज की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बहुत बड़ी विजय हुई है। आज जो भी हम लोगों की विजय हुई है उससे हम लोग बहुत खुश हैं, और पूरा काशीवासी और पूरा सनातन धर्म खुश है। अपने सभी काशीवासियों, सभी पूरे सनातन धर्म, पूरे देशवासियों से हमारी हाथ जोड़ के अपील है कि आज सभी लोग अपने घर में दिए जलाएं, शंख नगाड़े बजाएं और हर हर महादेव रात के 8 बजे हर हर महादेव शिकार गौरी माता की जय, बोलो शिकार गौरी माता की जय, बोलो हर हर महादेव। हर महादेव के नारे लग रहे हैं। आप एक साधारण अगर महिलाओं को समझाएं, आपकी भाषा में क्या विजय है, किस तरीके से? बहुत बड़ी आज नारी शक्ति की विजय हुई है, पूरे सनातन धर्म की, पूरे हिंदू समाज की विजय हुई है, और पूरे हमारे बाबा हमारे साथ हैं, और काशीवासी हम लोग बहुत खुश हैं। आज खुशी ने कहने आज प्रकृति भी हम लोग खुश है। आज हम लोग बाबा ने पहले अमृत वर्षा कर दिया, सोमवार को फैसला, सोमवार को सर्वे, सोमवार को बाबा, सोमवार को फैसला आ गया हम लोग के पक्ष में। सोमवार का दिन को मना भी ली थी। तब तक प्रकृति से हम लोग को आशीर्वाद मिल रहा था बाबा। लेकिन प्रकृति अभी ठहरे हुए हैं आपके फैसले के लिए। अक्सर बरसात हो जाती है। आज को विजय को ऐसा भी आप समझिए कि वरुण देवता भी आशीर्वाद दिए और सूर्य नारायण भी आशीर्वाद दिए हैं। जिस तरह से यह प्रकाशित हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है। सुनवाई में आपने क्या बोला है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? सुनवाई में उन्होंने जो मुस्लिम पक्ष ने रखा था कि ये 1991 के कानून को बाधित कर रहा है, ये आपका दावा, इसलिए इसको खारिज किया जाए, वक्त की संपत्ति है। और हम लोगों ने जो पक्ष रखा था कि ये कहीं से भी बाधित नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि 1991 को जो ये कानून है, उस कानून इससे कहीं बाधित नहीं हो रहा है, क्योंकि ये केवल पूजन का जो है, अर्चन का ही मांग कर रहे हैं, पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए कहते हुए उन्होंने खारिज कर दिया, उनकी आपत्ति को ही खारिज कर दिया है। फैसला हिंदू पक्ष, बिल्कुल फैसला हिंदू पक्ष में है, और हमने कहा था पूर्व में भी कि ये नज़ीर बनेगा, और आज ये नज़ीर बना है। 1991 जो है कहीं पूजा पाठ के अधिकार को नहीं रोकता है, और ये हमारा जो दावा है ये पोषणीय है और चलता रहेगा। तुम भैया क्या हुआ है? जो एलिगेशन लगाए गए थे, कानून बताए गए थे, कोर्ट ने क्लियर कर दिया है किसी भी कानून के तहत मेरा केस बार नहीं है।
और मेंटेनेबिलिटी कंफर्म कर दिया कोर्ट ने। 22 सितंबर की डेट दी गई है अंजुमन इंतजामिया और सभी भी प्रतिवादियों को उस तारीख को अपना रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में देना और ट्रायल प्रोसीजर। जो 7-11 वाला केस था उसमें क्या हुआ? वो डिसमिस हो गई एप्लीकेशन। पत्र खारिज हो गया है, 22 को डेट लगा है। 7-11 प्रार्थना प्रतिपक्षी का खारिज हो गया। आप मुकदमा आगे बता दें। राजदीप सिद्दीकी सर, आज क्या हुआ उस मामले में? आज हमारी जो 35 एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7-11 पर, ये मुकदमा यहाँ विचार है कि नहीं है, इस पर विचार होगा कि नहीं होगा, उसी पर आज ऑर्डर हुआ है। वो एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट क्या रिजेक्ट हो गई है? हाईकोर्ट जाएगी। अभी कहाँ जाएंगे इसके बाद? हाईकोर्ट जाएंगे।